यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, नमस्ते and a huge welcome to our exciting episode of Epic Insights, where we explore timeless wisdom and how they resonate in a modern world. So, this is Vrinda Gupta with my co-host Sagar Saxena, and we are from the Kana Makhan main branch. Hi everyone. Today we are diving deep into an ancient text that has been inspiring humanity for thousands of years, which is the Mahabharata. But how does this epic of war, duty and destiny influences our life in this 21st century? So how? To help us understand its relevance, we are having some fantastic guests today. First, let me introduce Honorable Dr. Madhvi Agrawal, a philosopher and expert in Indian text. Thank you so much for calling me here. I think this episode is going to be the best one today. Next up we have Garima Agrawal, a motivational speaker and a life coach who helps people to navigate from life's challenges by applying the ancient text of wisdom. I'm so excited to have been invited onto your podcast, and I eagerly look forward to sharing my insights regarding the topic today. Thank you. And we are also joined by Ms. Diksha Sharma, a social entrepreneur who uses these teachings to empower women in today's world. Hello everyone, and thank you so much. It's my honor and pleasure to be here with you guys. Wow, this will be amazing to have a guest who empowers women in today's world. As in this episode 2, we are going to talk about Draupadi as an inspirational woman. That's fascinating. Talking about Draupadi as an inspirational woman will teach us a lot. Good. So how? Let's start with the most basic question. Is Mahabharata still relevant in the 21st century? जी, तो अगर मैं अपने नजरिए से बताऊं तो महाभारत के पात्रों के संघर्ष केवल बाहरी नहीं होते हैं, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक संघर्ष भी होते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल के युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे बहुत बढ़ रहे हैं। तो महाभारत हमें सिखाती है कि हमें अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार करीब 1 अरब लोग मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो मिस गरिमा, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? Certainly, Mahabharata is relevant. It teaches us how to navigate through the complexities of life. Today, we all face personal dilemmas in our career, relationships, or ethical decisions. Yes, Ms. Garima, I am here to support you. As you have mentioned about personal dilemmas, so Mahabharata also offers a valuable lessons on leadership, responsibility and community. So, as there were several characters in Mahabharata, one of them is a Yudhishthir, who strives for justice and reminds us that our action as a leader should serve the greater goods. Yes, exactly. That is why I believe personal problems can definitely be solved with the help of Mahabharata in youngsters' life. I totally agree with you all. In Mahabharata, there are many characters like Arjun and Yudhishthir who teaches us a lot in this 21st century. बिल्कुल, महाभारत में बहुत से ऐसे किरदार हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। उसी में से एक प्रेरणाशील महिला थी द्रौपदी। तो डॉक्टर माधवी, आप क्या कहना चाहेंगी इस प्रेरणाशील किरदार के बारे में? द्रौपदी, जो कि द्रुपद की बेटी व महाभारत के महत्वपूर्ण महिला पात्रों में से एक है। उनकी कहानी हमें अपने आजकल के जीवन में अपने अधिकारों, आत्मसम्मान और न्याय के लिए लड़ना सिखाती है, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। गरिमा जी, what's your take on this? I agree with Dr. Madhvi. The epic Mahabharata itself says Nari tu Narayani, which means women, you are the realization of divine. Draupadi's courage and resilience in the face of adversity are a testament to the women's voice. Yes, Draupadi's story is such an inspiration for all of us. I totally do agree with Dr. Madhvi and Ms. Garima ma'am. Her story teaches us to fight for justice and to stand for ourselves and to be brave in the face of adversity. Absolutely. Draupadi was an incredible woman. तो द्रौपदी जी से संबंधित मुझे महाभारत के 23वें अध्याय का एक श्लोक याद है। बिल्कुल बताइए, हम बहुत उत्सुक हैं श्लोक सुनने के लिए। द्रौपदी क्वच पांचाली स्त्री रत्न मिति विश्रुता जीतन श्रेय स्तदा कृष्ण ताने वांग ध्वनम। अर्थात द्रौपदी को पांचाली और स्त्री रत्न मिति विश्रुता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पतियों
यानी पांडवों के साथ मिलकर कौरवों को पराजित किया था और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से अपने परिवार को संकट से बचाया। तो द्रौपदी जी के व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए और भगवान पर भरोसा और श्रद्धा रखनी चाहिए। तो हस्तिनापुर के दरबार में जो हुआ उसका क्या अर्थ था? महाभारत के चौसर खेल में द्रौपदी का अपमान एक अत्यंत ही अहम मोड़ था। उनका अपमान होना और उनका अपनी आवाज उठाना हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। तो क्या आप सच में मानते हैं कि उनका अपना आवाज उठाना, उनका प्रतिशोध पूरी तरीके से ठीक था? जी बिल्कुल, यह सच है। उनका आक्रोश और संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी। उनका आदर्श, उनके संघर्ष ने समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख दी है। बिल्कुल सही। उनकी जिम्मेदारी न केवल उनके समय के संदर्भ में महत्वपूर्ण थी, बल्कि आज के समय में भी हमें गहरे आत्मनिर्भरता, न्याय और संघर्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। Exactly. Draupadi didn't have a feeling of revenge, while she just seek justice. तो अब बात करते हैं द्रौपदी के महाभारत युद्ध में योगदान की। क्या आप लोगों को लगता है कि उनकी भावनाएं और उनके घोर अपमान ने महाभारत के युद्ध के माहौल को और बढ़ावा दिया? तो दीक्षा जी, आपको क्या लगता है कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी की वजह से हुआ? तो मेरे हिसाब से यह सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द्रौपदी का अपमान और उनकी बदले की इच्छा ने पांडवों के मन में एक युद्ध का संकल्प मजबूत किया। उनका संघर्ष और उनकी शेर जैसी मंशा युद्ध के हौसले को बढ़ावा दे रही थी। It is true that Draupadi's desire for revenge and justice gave strength to the Pandavas. However, Mahabharata was not just a personal or political battle, but it was a societal struggle. Mahabharata Draupadi's courage and resilience teaches us a lot in this particular thing. Yes. Absolutely. Draupadi's anger was all about self-dependence, struggle and justice. Yes, exactly. So as we are discussing here about Draupadi as an inspirational character to this 21st century, similarly one more important incident with her that needs our attention was her disrobing or चीरहरण। तो माधवी जी, आपका इस विषय पर क्या कहना है? तो मेरे हिसाब से द्रौपदी का चीरहरण हमें सिखाता है कि महिलाओं का अधिकार और सम्मान किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होना चाहिए। 21वीं सदी में भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, समाज में समानता की स्थापना और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए यह कहानी हमें प्रेरित करती है। तो मेरे हिसाब से द्रौपदी का चीरहरण न केवल एक ऐतिहासिक घटना थी, बल्कि आज के समय में भी हमें गहरे आत्मनिर्भरता, न्याय, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का महत्व भी सिखाती हैं। जी, on this subject, I would like to say that Draupadi boldly sought help from Lord Krishna, and Lord Krishna saved her with his divine power. Draupadi was Draupadi teaches us that we should not lose our belief and faith in any crisis. We should face the crisis with courage and patience. बिल्कुल, ये घटना द्रौपदी की भक्ति और श्री कृष्ण जी के दिव्य सहायता का प्रमाण है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को अपनी सहायता के लिए बुलाया और श्री कृष्ण जी ने उनकी सहायता की, जो कि एक साक्षात धार्मिक और दिव्य सहारा था। तो जैसे द्रौपदी के बारे में चर्चा करते हुए हमने काफी बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, एंड वी ऑल नो भगवान कृष्णा एंड द द्रौपदी's friendship teaches us about struggle, love and trust. So what do you want to say on this? Draupadi Krishna Sakhisa. This friendship of Krishna and Draupadi is a unique and inspiring example for all of us. Yes, one can maintain deep and genuine relationships without any societal pressures or differences. Exactly. I totally agree with the fact that a male and a female can be a true friend. Absolutely. Well, guests and audience, we are having a very special moment to share with you all. We are very happy to make him join in between us for enlightening with his wisdom. तो आइए स्वागत करते हैं हमारे विशेष अतिथि श्रीमान मनीष भगवताचार्य जी का। जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वार्तालाप में हिस्सा लेने के लिए। मनीष जी, कैसे हैं आप? बस कृपा है राधा रानी। तो मनीष जी, आज हम एक बहुत ही वर्णित सिद्धांत ग्रंथ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है महाभारत। उसी का एक अहम पात्र द्रौपदी के बारे में हम अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। तो मनीष जी, जैसे आजकल के लोगों को बहुत एंजाइटी फील होती है, लोग अपने जीवन के उतार चढ़ावों का सामना करने में बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई मंत्र या श्लोका? क्योंकि पर्सनली मेरे को और सागर को तो बहुत एंजाइटी फील होती है। जी बिल्कुल, एक मंत्र है, विशोक श्री विष्णु, अर्थात शोक हरने वाले श्री विष्णु भगवान। अगर आपको कभी भी
ऐसा लगे कि आप अकेले हैं या एंजाइटी फील हो, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र आपकी एंजाइटी कम करने में आपकी मदद करेगा। तो क्या सच में इससे एंजाइटी दूर हो जाएगी? देखिए क्या होता है, सिचुएशन कभी नहीं जाती, आप जूझना सीख जाते हैं भावों से, मंत्रों से, विचारों से। एक बात बताता हूँ, युद्ध के समय अर्जुन कृष्ण भगवान से बोल सकते थे, आप भगवान हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आप कुछ ऐसा करिए जिससे कौरव ये युद्ध हार जाएं और हम जीत जाएं। पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन से बार बार बोला, युद्ध चा, और गीता के श्लोकों के द्वारा ज्ञान दिया और सारी तरकीबें बता दी। परंतु अंतिम में युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। अर्थात ये मंत्र, ये श्लोकास हमें शक्ति दे सकते हैं, हमारा साहस बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी कठिनाइयों का सामना स्वयं ही करना पड़ता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीष जी। हमें अपने जीवन की लड़ाई स्वयं ही लड़नी चाहिए। So as we are moving further by closing today's discussion by asking last question to all of you. So, what's the most powerful takeaway from the Mahabharata that has impacted your life? For me, the biggest takeaway is teaching of selfless action from Bhagavad Gita. When we let go of attachment to outcomes and focus on the process, we free ourselves from stress and anxiety and focus upon making a true impact. जी, तो मेरे लिए सबसे बड़ी सीख स्वधर्म की अवधारणा है। हमें अपने कार्य को अपने उच्च उद्देश्य के साथ जोड़ना चाहिए। इसने मुझे अपने मार्ग पर सच्चे रहने के लिए प्रेरित किया, फिर चाहे ये मेरे काम में हो या व्यक्तिगत जीवन में, चाहे मुझे फिर कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। And according to me, Draupadi's strength and resilience is my biggest takeaway. Her ability to rise above her circumstances and to demand justice and to stand firm in her belief is something I strive to embody in my work, especially in the context of empowering women. और मेरे लिए सबसे बड़ी शिक्षा धर्म है, नैतिकता और न्याय के साथ अपने कर्मों को अंजाम देना। जब हम अपने जीवन के फैसले धर्म के आधार पर लेते हैं तो हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। Yes, I totally agree with you. In a world full of temptations and distractions, the Mahabharata teaches us to align with higher purpose and act with integrity, no matter how tough the path is. But our choices shapes not only the destiny, but also the collective future. बिल्कुल। आज की इस गंभीर वार्तालाप से हमने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत सी जानकारी आज आपने प्राप्त की होगी। अतः श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। Thank you so much for joining us today and sharing your insights on the topic Mahabharata. It's clear that this epic is going to teach us a lot in this 21st century. Epic Insights, I certainly had the best time with you guys, and I got to learn so many life-changing things through this episode. Thank you so much for having us. It's been a pleasure to explore epic insights and the lessons of Mahabharata with you and your listeners. मुझे इस चर्चा में आमंत्रित करने के लिए आपका दिल से आभार। मुझे लगता है कि यदि आजकल जो युवा है अपने वो महाभारत के किरदारों का जो विशेषता है वो अपने जीवन में उतारे तो वह किसी भी परिस्थिति से बड़ी सरलता से बाहर आ सकते हैं। मनीष जी, आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया, उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया उसके लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपने जिस जानकारी हेतु मुझे बुलाया है वो जानकारी आपके दर्शकों तक जरूर पहुँची होगी। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी चर्चा पसंद आई होगी। जल्द ही मिलेंगे एक नई चर्चा और विचारों के साथ। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद। धन्यवाद।